Good afternoon, sir. Good afternoon, common people. Good afternoon, sir. Hi, come in, come in. Good afternoon. Rajesh, hi. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hi, Suhani. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hi, Ashka. Hi, Sujal. और कौन? आ जाओ फटाफट. यार ये स्वयं तुम्हारा हमेशा का ही ऐसा रहता है. I'll turn on camera after half an hour. बाहर हो तो क्या हो गया भाई? तुम क्लास है ना तो बाहर क्यों? क्लास के हिसाब से सेटअप रहना चाहिए. Okay, who else is not there? Samruddhi. Okay. Samruddhi, are you there? Not there. All right, everyone else is there, so let's start quickly. कल हमने किया था फॉर्मूले बड़े सारे, है ना? और आज हम करेंगे उसके एप्लीकेशन. तुम लोगों ने लेवल 1 खत्म किया? Yes, sir, I finished. Okay. Yes, sir. So I couldn't do 3 of them. Sir, I couldn't do any of them. Who? Sujal, why? Sir, we had a presentation today, so like I had a 3-hour long meeting yesterday, so I couldn't do anything. So I am Werkar, what about you? So same, I also had project. I had 3 in fact. I had 3 projects in fact. Okay, tell me the Sir, formula for this. So I am Werkar. tell me Our the sir formula. just yesterday he made the Sorry? groups and everything and Why? told that today you have presentation, and then today when we joined the class, he's like, your presentation is next That's next fine, week. that's fine. चलो अभी काम की बात करते हैं. So I am, what is the formula for force? Mass into acceleration. Mass into acceleration, MA, right? Formula for momentum. Me? Hmm. Mass into velocity. Okay. Formula for force in terms of momentum. So I don't remember. Okay. Rate of change of momentum. क्या था ना? Sorry? Rate of change of momentum is equal to force. Yeah. Okay. All right, Ashka. Newton's first law. Yes, sir. Everyone put it on chat. Newton's first law. Put it on chat. The body will continue to remain in its state of rest or motion unless and until an external force is acted upon it. Correct. Good. Second law, Suhani Saab. Yes, sir. Second law. Second law of motion. Sorry. Can you hear me? Sorry. Can you hear me? Hello. Can everyone else hear me? Hello. Yes, sir. So, एक बार उसको बोलो ना. Sir, are you saying something?
Sujal, can you tell her what Is anybody saying something? He asked you the second law of motion. Okay, she's gone. She left. Okay, Aryan Rajesh, second law of motion. Rate of change of momentum, sir. Second law of motion. नहीं यार, rate of change of momentum नहीं और Sorry, sir. The second law of motion is rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force. okay. अच्छा, everybody put it on chat. First law, second law, third law. तीनों law chat पे लिखो. चलो. Hello, sir, can you hear me? यार इसका तो यही. Even if I say yes. Sir, I can hear you now. Yes. Good. I logged out and came back. Yeah. ठीक है. First law, second law, third law सब chat पे लिखो तीनों. Sir, I sent it. Okay. Ooh, let's see. First law say every action force है. Equal and opposite, huh? Okay. Yes, sir, I've corrected it. Okay. Cool. Force applied is equal to rate of change of momentum in that body. Very nice. Okay. ठीक है, चलो. अब बस इतने. Conservation of momentum. Everybody write the statement for conservation of momentum. So can you repeat? Write the statement for conservation of momentum. Okay. लिखो. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड होगा किसी सिस्टम पे, उसका मोमेंटम नहीं चेंज होगा. And it makes sense because F equals to delta P by T.
and if F equals to 0, then delta P is 0, then change is 0, no change. Well, I thought we have to write the math. वो स्टेटमेंट नहीं हो मैथमेटिकल. क्या हुआ पीपल, नॉट क्लियर? नहीं आता? ठीक है मैं बताऊं. स्टेटमेंट लिखो. स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज दैट, चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे. ऑफ मोमेंटम, ठीक है. इसमें है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल force applied in a system, then the total momentum of the system will remain conserved. So which means if F equals to 0, then M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2. ठीक है. डन हो गया तो बताना चाहिए ना फिर. डन. One second. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सपोज देखो सपोज एक ये बॉडी है M1 मास और ये बॉडी M2 मास, ठीक है. दोनों चल रहे हैं U1 U2 वेलोसिटी से. फिर चलते चलते क्या होता है कि दोनों टकरा जाते हैं और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी हो जाती है V1 V2. तो जब टकराए थे तो कोई वो नहीं हुआ था, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा था, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए थे, इंटरनल फोर्सेस. उसका मतलब M1 ये जो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. गेट इट? आया तो चलो. So can you show that slide? डन. What is the unit of unit of force? Sir, SI unit, right? Yeah. Put it Sir, on chat, Newton. everyone. Ashka, first correct answer. Sir, could you repeat the question? What is the unit of force?
Ashka, Suhani, then Sujal. 3 correct answers. Aryan. कहाँ है स्वयं? Yes, sir, I'm writing. ओके डन. स्वयं किधर है यार? आंसर कितना टाइम लोगे? So I'm writing the thing you have written. अरे तो पहले आंसर तो दो मेरे को. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? बोल के बोल दो. Yes, sir. क्या आंसर है? So is it Newton? हाँ. Yeah. And what is the CGS unit of force? Can you repeat? I'm not able to hear. What is the CGS unit of force? CGS, right? Dyne. Or what is the D/N/E. what is the connection between both Newton and dyne? 1 Newton is equal to how many dyne? 10⁵. ठीक है. चलो अब सवाल करते हैं. Sorry. अब क्वेश्चन करते हैं भाई. सवाल. Okay, sir. ठीक है. ओके. ये बॉडी ऐसे रखी हुई है. ठीक है. इसका मास है 5 kg. इसके ऊपर हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया. तो कितना एक्सेलरेशन होगा? कितना एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी में? बताओ. फाइनल आंसर. गिव मी आशका फाइनल आंसर. Sujal wrong. नहीं बन रहा लोगों से. सुहानी नहीं बन रहा. सुहानी. 1/5. So 1/5 meters square. 1/5. What formula? So F is equal to ma. So if you take F a to कितना? the other side, F कितना है? 15. 15. M कितना है? 5 kg. A निकालना हमको. 15 equals to 5 into A. तो A कितना हुआ? 15/5. 15/5 is equals to 3. तो फिर क्यों गलत कर रहे हो? हाँ. तो दिमाग ऐसी लिख के करो ना. मतलब जस्ट डोंट डू इट ओरली. स्वानी why? So I took m1f instead of taking f upon it. Sorry. So then mistake, right? Use your copy and pen and do it quickly. चलो. Yes, sir. Second question. So acceleration है 4 meter per second square. Okay, and a body is 6 kgs. तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? चैट पे लिखो फटाक से. यूनिट के साथ लिखना भाई. स्मॉल एन नहीं होता, कैपिटल एन होता. Okay. सुहानी, समृद्धि, आर्यन, सुजल करेक्ट आंसर्स. आशका
Correct answer, Swayam. Swayam, Yes, sir. क्या आंसर है? Sir, actually, I'm not able to see your presentation. Why? My net is too bad. Why? Actually, I'm out, so the net is like very bad over आवाज here. तो क्लियर आ रही है भाई, नेट तो सही है. I don't know. अरे चलो, एक बॉडी है, मास 6 kg है उसका, वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन है, तो फोर्स कितना होगा? So mass is 6 kg. and acceleration is 4. 4. फोर्स So कितना is होगा? it 24 24 क्या? Newton? 24 न्यूटन. ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन. एक बॉडी है, उसका मास नहीं पता, उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बॉडी का मास कितना होगा एवरीबॉडी? आर्यन करेक्ट, समृद्धि करेक्ट, सुहानी करेक्ट, सुजल करेक्ट. So what's the speed? स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Yeah. Okay. डन. स्वयं 5 Yes, sir. क्या न्यूटन, केजी क्या है? 5 kg. kg. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बॉडी है, उसके ऊपर राइट साइड में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में एफ फोर्स लग रहा है. उसका ओवरऑल एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में. बॉडी का मास है 3 kg. तो एफ फोर्स कितना होगा? नहीं, एफ फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो लेफ्ट वाला फोर्स वो कितना होगा? सुजल, स्वयं, सॉरी, सुजल करेक्ट. किस किस से नहीं बन रहा? हाथ उठाओ. सुहानी रॉन्ग, आर्यन रॉन्ग. Sir, I put the wrong side. Sorry, sir. आशका रॉन्ग. अच्छा लुक, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है सुहानी साहब? Yes, sir. इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? Sir, I'm very confused with the question. हाँ, I'm very confused with the question. I don't know. Why you confused? क्या समझ में आया सवाल में? क्या दिख रहा है तुमको इस क्वेश्चन? एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन. So basically, there's an object whose its weight is 3 kg. The acceleration is in the right direction, 5 meter per second square, and the force is also we have the 20 Newton in the right side again. So we know that 20 Newton is the greater force over here because the acceleration is in that direction. No way. Yeah, the acceleration is in that direction. Yeah, then
after लेफ्ट that साइड में कितना फोर्स है? F फोर्स। तो राइट साइड में 20 न्यूटन फोर्स है, लेफ्ट साइड में F फोर्स है, तो उसके पास नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर? 20 plus F. हाँ बोलो ना भाई सुहानी। 20 minus F. ठीक है, 20 minus F is the net force. This net force will equal to mass into acceleration. So mass is 3 into acceleration is 5. अब यहां से F की वैल्यू निकालो, कितना हुआ? Five Newton. Okay. So F is equals to 5 Newton आंसर है, ठीक है? Clear? Got it? Sir, I had a doubt on the last question. Yeah. Sir, in this, मतलब right side में force लग रहा है, left side में, so won't we add both of them? नहीं, अगर ये पॉजिटिव फोर्स है तो ये नेगेटिव फोर्स है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। Okay, okay. ठीक है, चलो एक और सवाल। F की वैल्यू बताओ। So what's the question? यार तुमको एक तो दिखता नहीं, अब ये तो डायग्राम बनाया, हाउ डू आई टेल? वापस ज्वाइन करो ना, दिखेगा पीछे। Okay, sir. सुजल वाग रॉन्ग, समृद्धि करेक्ट। क्या सुजल, क्यों गलतियां कर? Sir, now that they are in the same direction, so we will add it, right? Oh, okay, wait, I did something. Swani, what happened? Okay, correct. Ashka? Sir, I'm confused. What are you confused about then? So if we have to add them, Yeah. then the answer. Oh, nothing. Sorry. What is the net force? Just find the net force. Yeah, so I can see your presentation. So I have given the answer. Huh? क्या? So I have given the answer. Who's saying who's talking? Swayam. Swayam. इतना धीरे क्यों बोल रहे हो भाई? Sir, हाँ स्वयं ठीक है तुम्हारा। audible. एवरीवन को भेजा, एक तो तुमने पर्सनली भेजो, और ये दिख रहा है अभी तुमको स्क्रीन? Yeah, sir. ठीक I can. है, नेक्स्ट। कितना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? बॉडी नीचे गिर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आर्यन करेक्ट, समृद्धि करेक्ट। नहीं आर्यन रॉन्ग। व्हाट हैव यू सेड आर्यन? 9000 न्यूटन। Sorry, sir. Just सुजलवा करेक्ट, सुहानी करेक्ट, स्वयं स्वयं
ओके करेक्ट, Yeah, sir. मास इनटू एक्सेलरेशन तो हो गया 900 न्यूटन, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन, Yes. एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल्स टू 0, रेस्ट से चालू हो रही, ये है 5 kg, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 40 न्यूटन, ठीक है। तो सपोज 10 सेकेंड्स के बाद t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, और 10 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाती है, उसने s डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये s डिस्टेंस कितना होएगा बताओ, और इस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो भी बताओ। So I'm not understanding the question. एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, उसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है थ्रू आउट, वो बॉडी रेस्ट से चालू होती है, तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। So we have to find acceleration first, right? Yes, with acceleration you can find velocity and displacement. Sir, is it correct? I don't know, we'll have to check. पहले फाइनल वेलोसिटी भी तो बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितना है और s कितना है, ऐसे बताओ। What happened people, why so long? स्वयं ने आंसर दिया है, नहीं अरे स्वयं तुमने एक्सेलरेशन सही निकाला, लेकिन ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला तुमने, क्या फॉर्मूला लगाया डिस्प्लेसमेंट के लिए? So I'm sorry, it's wrong. It's wrong. 1 second. Sir, I'm confused how to do it. एक्सेलरेशन निकाला, Yes, sir. तो तुमको क्या क्या पता है इस बॉडी का, इस बॉडी का u पता है, u कितना है, 0 meter per second square. a कितना है, Sir, x by 10. हाँ X by 10. नहीं एक्सेलरेशन कितना है यार, यहाँ फोर्स अपॉन मास। Oh, okay. Sir, I did b minus u upon t. वो तो निकालना है v माइनस u अपॉन t से, बट फोर्स और मास से भी एक्सेलरेशन पता चलेगा ना। हाँ बोलो। Sir, it is 8, Sir, I right? put the answer in. Yes. Yeah, it'll be 8, right? Yes, I got. Yeah, it's Sir, I 8. put the answer in. 8 meter per second square. Okay, let me check your answer. We'll see. ठीक है, बाकियों से नहीं बन रहा, जिनसे नहीं बन रहा देख लो। u गिवन है, a तुमको मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब तुमको v निकालना है और t गिवन है कि t 10 सेकेंड्स पे निकालना है।
ठीक है, हमको v निकालना है 10 सेकंड पे कितना है, और हमको s निकालना है 10 सेकंड पे कितना हुआ। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, राइट। सो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 8 इंटू टी इज इक्वल्स टू 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे होगा v इज इक्वल्स टू 80 मीटर पर सेकेंड। s कितना है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut 0 हो गया प्लस हाफ इंटू a है 8 इंटू टी स्क्वायर है 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया हाफ इंटू 8 इंटू 100, तो ये 4, तो इक्वल्स टू 400 मीटर्स। तो ये 400 मीटर ट्रैवल करेगा 10 सेकेंड। गॉट इट। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन थ्रू आउट ये फोर्स लगते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि शुरुआत में फोर्स लगा के छोड़ दिया, तभी तो एक्सीलरेशन मेंटेन रहेगा। गेट इट। तो आर्यन राजेश का आंसर सही। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन नंबर 7? ओके 8th। ये बॉडी है 8 kg की, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का। t इक्वल्स टू 0 पे ये ऐसा था, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे ये सीन है इसका, और ये रेस्ट से चालू हो रही है बॉडी, रेस्ट से, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो t इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स पे उस बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, बताओ मुझे। बताओ। वेटिंग पीपल, क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगा? Okay, Sujal Wagh is given an answer. Good. So 1 second, I have like done half the part.
Cool. Lot of people have responded. आर्यन राजेश क्या हुआ तुम्हारा? पिछले वाले का तो आंसर दिया था, अभी नहीं आया तुम्हारा आंसर. Sir, I'm doing this now. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड So VR got 120 meter. हाँ तो सही है, 120 सही है और s इज इक्वल टू 720, राइट? ठीक है, Oh, चलो, Yeah. Sir, I made a mistake somewhere. कोई बात नहीं, कर लो, देख लो. ओके, अब क्या करें हम? ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया अच्छे से, है ना? नाउ Yes, sir. फाइंड आउट. ठीक है, चलो. तो अगर ये बॉडी गिर रही है, ठीक है, या ये बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी का मास है 10 kg, इसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ तो ये बॉडी के दो टुकड़े हो गए. तो एक ये पार्ट निकला और एक ये पार्ट निकला. ऐसे ये वाला पार्ट था 4 kg का, वो इधर 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागने लगा, ये टूटा. तो ये वाला जो पार्ट है इसकी स्पीड कितनी होगी? कैसे निकालेंगे इसको? तो मैं बताता हूँ. किसी को आइडिया कैसे निकालेंगे? तो देखो, जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? हाँ बोलो. Yes, No, sir. लगा? कौन बोला यस? मैंने बोला समृद्धि. तो वीडियो पे ऑन. Yes, sir. ऑफ क्यों रहता वीडियो? क्या कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगा जब एक्सप्लोजन हुआ? तो सर क्योंकि वो ऑब्जेक्ट टूट गया इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लगा ही होगा. नहीं, क्यों? अंदर से भी तो लग के जब एक्सप्लोजन होता है तो सारे फोर्स अंदर से लगते हैं ना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा था उसको, सारे फोर्सेस अंदर से लगते हैं. तो इंटरनल फोर्स ही था, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा उसके ऊपर. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा पूरे सिस्टम को. तो ये सिस्टम है. अब ये सिस्टम इतना बड़ा क्योंकि फूट गया इधर दोनों तरफ, तो इसका अगर मास 4 kg था तो इस वाले बचे हुए का मास कितना होगा? 6. 6 kg. और मोमेंटम कितना हुआ? 4 × 9 प्लस 6 × v. इतना मोमेंटम हुआ इसका फाइनल. और इनिशियल मोमेंटम कितना था? मास इंटू वेलोसिटी 0, है ना? तो ये हो जाएगा 0. तो ये कितना हो गया? 36 प्लस 6v इक्वल्स टू 0. तो v की वैल्यू कितनी आएगी? -36/6, राइट? तो -6 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो अगर 9 था, इसको हमने पॉजिटिव लिया तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए माइनस होएगा ये. तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड. ये इसकी स्पीड होगी. आ गया? Another type of question for this, for conservation of momentum is this. ये एक बॉडी जा रही है, ये है 10 kg की, ठीक है, ये जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे, और यहाँ पे एक दूसरी बॉडी रखी है, ये है 5 kg. फिर ये जब यहाँ पे पहुंचती है तो दोनों टकरा जाते हैं ऐसे, ठीक है, और दोनों टकराने के बाद जुड़ जाते हैं और जुड़ के आगे चलते जाते हैं. तो जब ये जुड़ के आगे चलेंगे तो उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कैसे करेंगे? So I didn't understand. Okay. So what was the velocity of the I'll tell you. 5 kg wala box? A 10 kg box is moving with a speed of 4 meter per second. It hits another box of 5 kg resting ahead.
after hitting both boxes are joined together, what will be the velocity of the combined boxes? ठीक है, एक बॉक्स जा रहा था ऐसे ऐसे, इधर एक दूसरा बॉक्स था, इधर जा रहा था ऐसे, टकरा गया, टकराने के बाद दोनों साथ में जुड़ गए, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? So what was the velocity of 5 kg box? जीरो ना, खड़ा रेस्टिंग लिखा ना उधर, 5 kg रेस्टिंग। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले So for mass we will consider 15 kg. you tell me what will you consider? So give me a minute, I'll solve it. हाँ solve it. एक बॉक्स है 10 kg का, वो चल रहा है कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड, और वो दूसरा बॉक्स यहाँ पे रखा है 5 kg का, वो है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये हो गया केस 1। केस 2 में क्या हो गया? दोनों मिल गए एक साथ, और दोनों अब एक ही वेलोसिटी से आगे चल, राइट? केस 2, तो तुमको वेलोसिटी निकाल, खत्म। So is the acceleration 8 by 3 meter per second square? एक्सेलरेशन कहाँ है इसमें? फोर्स थोड़ी लग रहा है, वेलोसिटी और मास है ना। So on the right hand side. क्या राइट हैंड साइड? The body will move in the right hand side, right? हाँ, So will the acceleration be? नहीं, फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा भाई? किसी बॉडी के पास वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जरूरी थोड़ी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ जल्दी से। So I'm not understanding them how to do. Okay, try it and I'll tell you. And those who don't understand can raise their hands and I'll tell you. Sir, I've put the answer. Yeah, what? Sir, I've put the answer. I think Good, good. किसको नहीं आ रहा है? सबसे पहले तो सब लोग वीडियो पे आओ। Come on video quickly. सुहानी साहब नहीं समझ में आ रहा? So I'm still working at it. I'm not sure what I'm It's so working. easy.
ओके टेल मी व्हाट हैपेंड. एक 10 kg का बॉक्स ऐसे चल रहा है, दूसरा वाला बॉक्स यहाँ 5 kg का रखा हुआ है. तो ये पूरा सिस्टम, ये एक सिस्टम हो गया ना. इस सिस्टम का मोमेंटम कितना हुआ टोटल? बोलो सुहानी. What is the momentum? How do we remove velocity in this? Remove मतलब? So to remove, to get the momentum, we need velocity, right? Of Velocity दिया the तो entire. दोनों बॉडी की वेलोसिटी दी है ना. इस बॉडी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 0. तो what is the momentum for this body? 40 और इसका 0. टोटल मोमेंटम कितना हुआ? 40. हुआ. इनिशियल मोमेंटम था 40 kg मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कितना है? दोनों की सेम वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? 69. नहीं 69 कैसे हुआ? 69? टेल मी. No, sir, I did it wrong. तो टोटल मास कितना है इसका? अभी दोनों जुड़ गए ना, तो टोटल मास कितना हो गया? 15 kg. 15 kg. और इसका वेलोसिटी सपोज v है, तो 15 into v हो गया. 15 v इसका फाइनल मोमेंटम हो गया, राइट? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, दोनों एक दूसरे से टकराए थे, इसलिए 40 शुड बी इक्वल टू 15 v, राइट? Yes, sir. दैट्स इट. So then P is equal to mv, so we use. v is equal to 40 by 15. That's Yes, it. sir. 5 8 are 40, 5 3 are 15, तो 8 by 3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी हुई. आ गया समझ में? Sir, I guess Swayam got 8 by 3 as the acceleration. And he said, चलो yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, सपोज ये कैरम का स्ट्राइकर है, ठीक है? कैरम का स्ट्राइकर है. अगली स्ट्राइकर होएगा तो फिर मुझे इसको ग्राम्स में देना पड़ेगा ना. लेट्स फाइन एक कार से लेते हैं. चलो एक कार जा रही थी, एक कार जा रही है, this car is traveling at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? इस कार का वेट है 1000 kgs. कार ऐसे चल रही है, ओके? और इस पे हमने ब्रेक लगाया, ठीक है? ब्रेक लगाया तो ये कार यहां पे आके रुक गई. एंड इट टुक 10 seconds फॉर द कार टू स्टॉप. तो ब्रेक से कितना फोर्स लगा होगा? दस सेकेंड में वो कार रुक गई, तो कितना फोर्स लगा होगा कार के ऊपर? Sir, so we need to find the force applied by the brakes. यस. किस किस से नहीं बन रहा हाथ उठाओ. गुड, सबसे बन रहा है इसका मतलब. गुड, ट्राई. मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, फटाफट निकालो. इजी है.
बट SI यूनिट करके निकालना। Sir, I put the answer. सिर्फ आर्यन राजेश का आंसर आया। चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। So we need to find the acceleration, right? Yep, tell me what were you saying? Come on video people and tell me. आर्यन का आया, आशका का आया। सुहानी साहब क्या नहीं बन रहा तुमसे? Yes, sir. क्या नहीं बन रहा? Sir, I'm working on the last part. I'll just get the answer and I'll put it down. Okay, Sujal Wagh, what happened to you? Sujal, Samruddhi, where are you? So actually, there's some network issues right now, so I've switched off my camera. Are you- Otherwise, I was not able Are you able to to do it? Yes, sir. तो कहाँ है आंसर? So, 54 kilometer per hour is the velocity or speed. हाँ? So 54 kilometer per hour. हाँ. क्या? So that is velocity, right? तुमने क्या बोला? Is it velocity or speed? हाँ.
Yeah. क्या डिफरेंस है वेलोसिटी स्पीड में? So I guess he meant to say initial velocity. So it's initial Yeah. velocity या initial speed. मैंने बोला 54 किलोमीटर पर आवर और ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जा रही ना गाड़ी, तभी तो यहाँ पे आके रुकी। तो स्पीड है और प्लस हमने डायरेक्शन बता दिया, तो अपने आप वेलोसिटी बन गई ना। ओके समृद्धि, समृद्धि So I guess I got the answer. Yes, sir. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 54 54 क्या? kilometer per hour. वो एसआई यूनिट तो नहीं हुई ना? So I've converted into meter per second. That is 15 meter per second. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में? So into 5/18. ओके मीटर पर सेकंड, राइट। तो 18 3 तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ये हो गई क्या? ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी वी यू, और वी कितना है इसका? 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 10 seconds. 10 सेकंड्स। तो ए पता चल जाएगा हमको यहाँ से। Yes, sir. ये कितना हो जाएगा? A will be v minus u upon t. That will be 1.5. माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। मास कितना है? 1000 kgs. तो फोर्स कितना लग रहा होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1000 इंटू माइनस 1.5 इज इक्वल टू माइनस 1500 न्यूटन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स लगा होगा 1500 न्यूटन, है ना। इस तरह करना है सॉल्व, सिंपल, गॉट इट। So actually I sent you the answer, but I put it in the Yeah, okay, got it people. Yes, sir, I used the second law wala equation. F is equal to delta P upon T. I got the same answer. Very nice, good, that is also good, correct. Delta P upon T, very good, ठीक है, correct. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एक वुडन ब्लॉक है ऐसा, इस पे हमने एक गन से शूट किया, ठीक है। एक गन से हमने शूट किया इसको, तो यहां से एक बुलेट निकली, ओके। ये बुलेट जो है, ये बुलेट है 50 ग्राम्स की, और ये बुलेट निकली थी कितना 1200 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फिर जैसे ही इसके अंदर गई, इसके अंदर बुलेट गई, है ना, तो इस बुलेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया बिफोर स्टॉपिंग। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बुलेट जो है रुक गई। Got it? Got it people? क्या हुआ सीन में, समझ में आया? Yes, कितना अंदर गई? अब ये कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है सपोज 2 मीटर्स, ये 2 मीटर ट्रैवल। तो बताओ ये जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा इसको रोकने के लिए? तो इस वुडन ब्लॉक ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा
इसको रोकने के लिए। तो कैसे करेंगे इसको? सेम जो इसने अभी बोला, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कितना मोमेंटम था? इतना था। फिर यहाँ पे कितना मोमेंटम हो गया? 0 हो गया। बट टाइम तो दिया नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। तो फिर अब क्या करोगे? इससे एक्सेलरेशन निकालो। तो डिस्टेंस वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकल सकता है। एक्सेलरेशन निकालो। Sir, I didn't understand. So if when the bullet entered, उसकी velocity तब कितनी थी? 1200 meter per second. और after 2 meters उसकी कितनी हो गई velocity? 0 meter per second. वो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस भी पता है। तो तुमको v पता है, u पता है, x पता है, तो a निकाल सकते हो, Yeah. है ना? और a निकल जाएगा और बुलेट का मास भी पता है, तो हमको पता चल जाएगा बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा। Okay. Okay. So I have written the answer. Is it correct? देखता हूँ, मेरे को नहीं पता यार, ये तो मैंने अपने आप से बनाया ना सवाल। Let me see. 60 न्यूटन तो इम्पॉसिबल है, इतना इतना कम तो नहीं बुलेट को रोकने। एक्सेलरेशन कितना आया तुम्हारा? कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने स्वयं एक्सेलरेशन नापने के लिए? So no, it's wrong. Yeah, I understood what mistake I did. ओके बताओ पीपल, तो अपना पूरा वीडियो ऑफ कर ले दो।
People, what happened? So what is the final velocity? 0. रुक गया ना अंदर जाके. So and did you give the time? टाइम नहीं है, s दिया हुआ 2 मीटर. Suhani, what happened? Sir, I logged out and logged in thrice. I just can't see your screen. Okay, so I'll share it again. Now? It's still No. loading for me. It's still loading for me. Ashka, what happened? I'm a little confused. When we find time, should we take oh Why do you have to find time? yeah, nothing. I got it. Acceleration निकालना ना, retardation निकालना राधा तुम्हें. तो v पता है, u पता है और s पता है. तो a निकल जाएगा. Sir, I've put the answer, but I'm not sure. नहीं, गलत है आर्यन. कैसे किया आर्यन, बताओ. Sir, so first I was finding acceleration. So I used the third equation, which is u squared equal to u squared plus 2as. Oh, sir, I made a mistake. हाँ, फिर I'll do it again. so acceleration will be equal to v square minus u square by 2s. Right? Yes, sir, I made a mistake there. ये 0 हो गया, ये u square कितना हो गया? 144,000. Right? ठीक है. फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन.
18,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा उसको. Got it? Guys, are you there? Yes, sir. Okay, everybody come on video. Yes, sir. आई थिंक तुम लोग को अभी प्रैक्टिस की जरूरत है. तो जिन लोगों ने लेवल 1 नहीं किया प्लीज जाके लेवल 1 करो. जिन लोगों ने लेवल 1 कर लिया वो लेवल 2 और लेवल 3 में प्रोसीड करो. Once you practice all of it, then it'll make sense, I think, for us to go to a higher level question. तो अभी मैंने तुम लोग को वैसे भी थोड़ा बहुत समझा दिया किस तरह से सवाल करने. So now go ahead and do level 1, level 2, level 3 finish करो इस हफ्ते. ठीक है? Okay? So अभी भी हमारे पास आधे घंटे ऑलमोस्ट बचे, उससे ज्यादा बचे. उसमें तुम जितने क्वेश्चंस कर सकते हो लेवल के उसको खत्म करने की कोशिश करो. All right, okay then. Bye bye. Bye, sir. Bye. Bye. Thank you, sir.